यस। बोला ओके करिश्मा जी, सबसे पहले तो जाना चाहिए बेटी बी के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। आप बताइए आप कितनी एक्साइटेड है आज की शाम को लेकर, और आज की शाम आप रैंप वॉक भी करने वाली हैं? Yes, I'm going to walk the ramp. I'm very happy, I'm very honored that I'm getting this opportunity to walk because आजकल जो आप लोग सभी जानते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में, आई फील बेटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं कुछ maybe I can make a small difference to the society by walking, because what is happening is not right. There has to be some changes made. So Beti is great platform. जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी हैपनिंग हो रही है हमारे हिंदुस्तान में, आसिफा को क्या जस्टिस मिलना चाहिए आपके अनुसार? आई थिंक दोज पीपल जो रेप करके अपने घर में बैठे हैं और आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी इज मेकिंग इट रिलीजन एंड अबाउट पॉलिटिक्स. इट्स अबाउट समबडी हु इज बीन रेप्ड, हु इज 8 years old. आई थिंक दोज पीपल शुड बी किल्ड. आई मीन वी मेक अ बिग डील आउट ऑफ बिकॉज सलमान को यू वांट टू पुट हिम बिहाइंड द बार्स बिकॉज ही किल्ड अ डियर. Really, is that inhuman? Is that how inhuman we've become? I think please, if whoever is listening, please do something about it. I want those people to be hanged. Those people should be killed. Yes. जी, इसके अलावा आपके गेटअप के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि आप ब्यूटीफुल तो है ही, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, तो आपके गेटअप के बारे में? I'm wearing a Kanjivaram, silk, and I love it. I feel like a princess today. Thank और you. ये ज्वेलरी के बारे में कुछ बताना चाहिए? ज्वेलरी जो होती है वो लेडी के काफ़ी I करीब think होती है। diamonds, it's the woman's best friend and always enhances. अगर jewelry के बिना clothing, it's incomplete, I would say. रागिनी एमएमएस हमने देखा, आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया आपको, Thank you. बहुत ही सक्सेस दिया। अब हम क्या अब देखेंगे? कपूर्स, आप लोगों ने देखा होगा मेरा और कुशाल टंडन का नया नेक्स्ट शो आ रहा है. इट्स कॉल्ड द कपूर्स. इट्स गोना बी ऑन ऑल्ट एंड इट्स गोना बी इन मे. सो यू गाइस शुड डाउनलोड ऑल बालाजी. आज एक्चुअली ऑल बालाजी का फर्स्ट एक साल पूरा हुआ है. सो हैप्पी बर्थडे ऑल बालाजी ऑल्सो. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी, थैंक यू Thank सो you. मच एंड गुड लक। ये वीडियो मुझे भी ओके किया जी, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे बेटी बी के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप बताइए आपका क्या टेक होता है जब इस इनिशिएटिव पर आप यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, आप भी यहाँ पे क्या टेक होता है? I feel honored, I feel privileged to be part of this such a great initiative because not only today, not it's like so many things happening around us. We should always support the Beti because from the time, I mean, I keep hearing from my grandmother's place or my nana nanis के time से मैं सुनती आ रही हूँ because they don't appreciate बेटी लड़कियाँ much. हमारे इंडिया में जितने भी villages हैं वहाँ पे still they don't feel very happy when the daughter born or something. So I think from the starting itself, from the quite old ages itself, people, a part of the group, a part of the society is trying to support Beti. So this is a great thing, and it's my pleasure to be here and to do my little bit of this. और किया जी, हम बेटी बी की बात करते हैं, बेटियों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आसिफा जैसी बेटी को क्या जस्टिस मिलना चाहिए आपके अनुसार एज एन एक्टर? It's not as an actor, as a normal human being also, everyone should get justice. It's not only Asifa, all the people like in the past, it happened with Nirbhaya and it keeps happening with so many people we don't even get to know. I mean, बहुत कम cases ऐसे होते हैं जो limelight में आते हैं, but so many girls, 100 of girls are there जिनके बारे में कोई सुनता भी नहीं है, उनका कभी बाहर भी नहीं आता है. I know there are so many people, they don't even come out and talk about it. उनका रेप होता है and they don't even like talk to people, बहुत चुप होके बैठ जाते हैं. So I think everyone should get justice for all kind of crime, not only rape, for every single thing. There should be law, there should be rules, people should follow it, and if they are on the wrong side, they should get the punishment. इसके अलावा रैंप वॉक भी करने वाली है आज की शाम में? क्या करने वाली हूँ? रैंप वॉक Yes, of course, definitely. एक्साइटेड है आज की शाम में? Super excited because as you can see, I'm wearing this Aparna silk dress, beautiful, gorgeous dress, and I'm feeling like a princess because she wanted to give me this Barbie look, and I think I'm doing justice to it, and I'm looking forward to walk on it. Because you look like a very princess. अटैक के बारे में जानना चाहेंगे,
ज्वेलरी के बारे में जानना चाहेंगे कि ज्वेलरी क्या है और लेडी के काफ़ी करीब होती है ज्वेलरी, तो आप ही कितनी करीब होती है? Okay, fine, not very much. I'm not a jewelry girl actually. I don't like jewelries much. But this jewelry is actually enhancing my whole look. No, it's not necessary. Not supposed to. What supposed to? No, I don't like jewelry. I'm more like a tough girl. So not much into jewelries and all. But yes, this particular set is supporting my whole outfit and it is enhancing my look. So yes, it's like going complete outfit. ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं वेट विजुअल क्रॉप पीछे थोड़ा सा हाँ ले दीदी और कौन संदीप हाँ वो अभी आई है, वो मेकअप करके आते हैं, वो अभी रोला मैडम आप लोग रेडी ओके। तो सबसे पहले तो बेटी भी इस इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहेंगे, इस इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहेंगे जिस मौके पर आज हम आप सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। लेडीज फर्स्ट। बी विद बेटी बहुत ही ख़ास एक वजह है, यहाँ हम सब लोग आज यहाँ इसी एक वजह से जुड़े हैं और आए हैं। ये सिर्फ एक रैंप मॉडल वाला वॉक नहीं है, ना ही सिर्फ कॉस्ट्यूम्स है, ना ही ज्वेलरी है। यहाँ एक हम कहते हैं ना इंसानियत के तौर पे एक दूसरे का हाथ थाम के आज ये प्रूव करेंगे कि हम लोग सच में बेटी के साथ हैं। और मुझसे आप किसी भी जो गतिविधियाँ हो रही हैं बेटियों के साथ, उस विषय में मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं आपको उनका भी लेना है। तो ये जो इशू है उससे हम लोग बहुत परे होकर आज हम एक साथ इसलिए इस मंच पर आए हैं ताकि हम एक मैसेज दे पाए कि हम लोग साथ हैं, पूरी फ्रेटर्निटी। क्या ठीक होता है आपका जब बेटी के मौके पर हम सभी आप देखिए, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता इस वक्त हमारे देश में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में हम लोग चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें, वो पढ़ें, और लोग जिस तरह से लड़की को कम समझते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग ये इनिशिएटिव यही ले रहे हैं कि बी विद बेटी। बेटियां किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में बेटों से कम नहीं है। और हम टीवी फ्रेटर्निटी वाले सब एक साथ मिलके हम लोग ये जो शो कर रहे हैं, इसका रीज़न यही एक है कि बी विद बेटी। सो हमारा नारा यही है, बी विद बेटी। तो प्लीज़ हम लोग पूरी जनता को, जो भी हमें देखते हैं टीवी पे, हम लोग उनसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बी विद बेटी। हम आप सभी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के एक कोने में आसिफा जैसी लड़की के साथ में जिस तरह से चीज़ें होती हैं, कि कितना मानते हैं कि आप लोग की जस्टिस मिलना चाहिए आसिफा को? जी देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ वहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में लॉज जो कानून है उसको अमेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जितने भी हैं, उनकी जो सज़ा है, जब तक लोग उस सज़ा से डरेंगे नहीं तब तक वो क्राइम करते रहेंगे, क्योंकि रेप करने के बाद भी वो लोग आज़ाद घूमते हैं, उनको बेल मिल जाता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर रेप की सज़ा मौत है। और मैं यही चाहूँगा कि रेप इज़ इक्वल टू मर्डर, बिकॉज आप एक इंसान की आत्मा का आप मर्डर करते हो, तो इट्स इक्वल टू मर्डर, सो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ मर्डर। इसलिए इसके लिए डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए। वंस प्रूव्ड, द पनिशमेंट शुड बी डेथ पेनल्टी। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ विनीत ने जो भी कहा है, मैं वर्ड टू वर्ड अग्री करती हूँ उस चीज़ को, और ज़्यादा मैं इस विषय को तूल नहीं दूंगी क्योंकि एक बच्ची के साथ जो हुआ है, मैं इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं शब्दों के माया जाल को कनेक्ट करके आपके सामने दे पाऊँ। शायद मैं रो पड़ूँ, और मैं बहुत भरी हुई हूँ इस इंसिडेंट से। तो मैं अभी सिर्फ के लिए यही कहना चाहूँगी कि मैं अग्री करती हूँ जो भी विनीत ने कहा। सो चलिए, इसके अलावा रैंप वॉक भी कर रहे हैं आज की शाम आप लोग जी। कितने एक्साइटेड हैं रैंप वॉक को लेकर? बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सिर्फ सेट्स पे जाते हैं, अपने सीन्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक्टिंग करते हैं। सो ये थोड़ा डिफरेंट है और करने में मज़ा आएगा। वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डू दिस एंड मज़ा आएगा, अच्छा शो होगा, और इसी बहाने हम सब एक साथ मिल भी लेते हैं। एक साथ मिल भी लेंगे। एक्साइटेड हैं आप रैंप वॉक? बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ ये वॉक रैंप वॉक नहीं है, हमारे सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, पूरी मीडिया है यहाँ पे, सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं। चलिए, आपके इस ब्यूटीफुल गेटअप के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि ये क्या
गेटअप के बारे में? मैं आई एम वेयरिंग टिपिकल ऑथेंटिक इंडियन वेडिंग वेयर और आई होप मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ हैंडसम लग रहे और मैं चाहता हूँ कि हर दूल्हा जो है वो ऐसे ही कपड़े पहने और ऐसा ही लगे। मैडम आप क्या अटायर के बारे में? मैंने मुगलई गाउन पहना है एकता और पार्थ के क्रिएशन से। ये लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर्स हैं। और ये कुंदन का हार पहना है मैंने और बहुत ही आप देखेंगे इस पे बहुत जरी का काम किया गया है। करेक्ट करेक्ट। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर एक डिज़ाइनर के क्रिएशन में भारत यदि दिखने लगे तो उसकी जो पूरी मेहनत है वो सफल हो जाती है। क्या बात है। जी। थैंक यू सो मच गुड लक विश यू ऑल थैंक यू मैडम फ्यू सेकंड्स दिस रोल अरे मुझे लीची और संबूरा ये अच्छा लग रहा है अब प्रॉपर दूल्हा हेलो हाय कैसे हो ग्रेट पिक्स कैसे वन पिक हाँ वन पिक चलो आ जाओ संबूरा बोले ओके तो सबसे पहले तो बेटी भी विथ बेटी का ये जो इनिशिएटिव है किस तरह से सपोर्ट करती हैं आप और आप खुद एक बेटी हैं जी मुझे बहुत साल हो गए हैं बेटी को सपोर्ट करते हुए और हर साल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने देखा है इतने सालों अनु मैम और शशि सर को इस कॉज के लिए वाकई में कंट्रीब्यूट करते हुए और एसिड विक्टिम्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। सो आई जस्ट फील प्राउड कि मुझे ऐसा मौका लगता है कि मैं जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊँ इस कॉज के लिए मैं करती हूँ। हर साल आती हूँ भले ही मैं कुछ भी कर रही हूँ। सो येस मैं भी एक बेटी हूँ और बहुत प्राउडली इस कॉज के लिए खड़ी हूँ। हम सभी बेटी के को सपोर्ट करने की बात करते हैं लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कोने में आशिफा जैसी बेटी के साथ में जो होता है आप मानते हैं एज एन एक्टर की जस्टिस मिलना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि इस तरह के यार ऑनेस्टली मुझे लगता है अब असीफ़ा को क्या जस्टिस देंगे, वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही, तो असीफ़ा को तो नहीं हम जस्टिस दे सकते। लेकिन एक उम्मीद है कि अगर जिन लोगों ने ऐसा घटिया काम किया, जिन्होंने ऐसा सोचा भी, जिनकी मतलब उनकी रूह नहीं कांपी ऐसा कुछ करते हुए, उनको बहुत जल्दी पकड़ा जाए, उन्हें कन्विक्ट किया जाए, उन्हें बहुत जल्दी सेंटेंस दिया जाए, सालों सालों उनके बारे में केसेस ना हो और ये डिले ना हो। इमीडिएटली उनको एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही एक स्टेटमेंट देने वाला, उनको एक बहुत ही जल्द उनको एक पनिशमेंट मिले। इसके अलावा आपका ब्यूटीफुल अटायर है उसके बारे में जाना और आई थिंक गजरा कहेंगे नहीं, रोजेस है, एक बड़ा ही प्रिटी सा टच है हमारे आउटफिट में, रोजेस लगाए हैं और आई एम वेरी हैप्पी टू वेयर दिस ब्लैक मेरा फेवरेट और मुझे ब्लैक और वो भी इंडियन में मिल जाए तो मुझसे तक खुश कोई नहीं हो सकता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ब्लैक में इंडियन पहनने का मौका लगा है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द लुक दैट दे हैव गिवन मी। या ज्वेलरी हर किसी के करीब होती है तो आपके भी बिल्कुल, कौन सी लड़की को ज्वेलरी नहीं पसंद, यू नो एवरीबडी वांट्स टू स्पार्कल इन द ज्वेलरी एंड आई एम अ ट्रू गर्ल, आई लव द स्पार्कल्स टू और बहुत सुंदर लग रहा है। आई थिंक द चोकर इज लुकिंग रियली नाइस और मेरे आउटफिट पे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट्स ले चुकी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। फ्यू सेकंड्स नहीं मेरे में नहीं Let me look at you or here? लुक एट मी ठीक है. रोल अंशुल लुक सेंटर द कैमरा Here? Or the lens you want? ओके अंशुल सबसे पहले तो बी विथ बेटी को सपोर्ट करने के इस इनिशिएटिव के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप बताइए क्या टेक होता है किस तरह से Here, I mean, we all know what's happened in the past 4 days, 5 days. The rape cases that have come forward. So I think a campaign like this ना मतलब आज के दिन की ज़रूरत नहीं है. This is something that a country like ours we should be celebrating it like every day. So many rape cases happen, like so many in our country.
so many of them which we don't even, the law does not even get to know about. So I think it's high time that a country like ours, which is a developing country, we woke up and we started giving the women the status that they deserve here. तो आई थिंक हर दिन हमें ये कैंपेन बी विद बेटी सेलिब्रेट करना चाहिए. मेरे पास एक छोटी बहन है, तो आई नो हाउ एज अ कंट्री वी आर, एज अ फैमिली आई एम अफेक्टेड व्हेन शी इज आउट लेट हियर. यू आर वरिड. सो आई थिंक वी हैव टू चेंज दैट माइंडसेट एंड द गर्ल्स हैव टू बी गिवन द इक्वालिटी दे डिजर्व हियर. क्योंकि आपने टॉपिक उठाया, मुद्दा उठाया, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आसिफा को जस्टिस मिलना चाहिए? हमारे समाज में हम देखते हैं यार, कि लोग फ्री घूमते हैं. आसिफा ही नहीं, वी नो उससे पहले कितने केसेस हुए हैं, और आसिफा की जो स्टोरी इतनी बड़ी हो गई है, उसके बाद 10 केस और सुनाई दिए गए हैं कि ये भी हो रहा है. तो हर चीज़ को यार, आई मीन, एंड आई थिंक जो पनिशमेंट ऑफ रेप है हमारे लॉ के हिसाब से, इट शुड बी वेरी क्विक. लाइक अगर तुम्हें पता चल गया है भाई ये आदमी दे आर फाउंड गिल्टी, इमीडिएट द इफेक्ट हैज़ टू बी इमीडिएट, ताकि इट सेट्स एन एग्जाम्पल एंड पीपल आर स्केर्ड आगे से यार ये चीज़ करने के लिए. रेप इट्स टू बिग अ क्राइम, इट इज़ टू बिग अ क्राइम. आपके गेटअप के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि आई थिंक हम इसे दूल्हा भी कह सकते हैं. गुलाबी दूल्हा वाले दूल्हा, getup कह हाँ सकते हैं? हाँ, जी. जो भी है. आई थिंक हाँ, तो अंशुल, मतलब आपके getup के बारे में ये गेटअप ऐसे है कि माई पास्ट शो वॉज ये रिश्ता क्या कहलाता है. उसमें मैं हर दिन, उस शो में मैंने कैजुअल वेयर या वेस्टर्न वेयर कम पहना होगा और इंडियन वेयर ज़्यादा पहना होगा. तो आई एम यूज टू वेकिंग अप एंड बीइंग इन दीज क्लोथ्स. तो हाँ ठीक है, आई मीन इट्स अ नाइस शेरवानी, नीचे धोती है और नीचे शूज़ मेरी चॉइस थी. मुझे मोजड़ी नहीं पहननी थी क्योंकि हर कोई इसके नीचे मोजड़ी पहनता है, तो मुझे ज़रा कुछ काफ़ी डिफरेंट भी है. डिफरेंट पहनना था. तो मैंने डिज़ाइनर को बोला था एंड लकीली वी वर्कड आउट अ पेयर ऑफ शूज़. रैंप वॉक भी कर रहे हैं आप? हाँ, कितने एक्साइटेड हैं रैंप वॉक को लेकर? एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ जो सेगमेंट मैं कर रहा हूँ उसमें 10-12 एक्टर्स हैं, एंड आई थिंक ज़्यादातर लोगों को मैं पहले से ही जानता हूँ बिकॉज बीइंग इन द सेम फ्रेटर्निटी. तो इट्स अ गुड फीलिंग है वॉकिंग फॉर अ गुड कॉज. एंड लाइक आई सेड, आई थिंक ये बी विद बेटी शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे, not just today, not just another day after a month. Every day it's a cause that we as a country need to celebrate every day. Thank you so much, Anshul. Welcome. Thank you so much and good luck. Few seconds. Yep. हम सर बेटी बी विद बेटी किसी कॉज को सपोर्ट करने के लिए हम सभी यहाँ पे present हैं. आप बताइए क्या टेक होता है आपका जब इस मौके पर हम सभी एक छत के नीचे होते हैं? ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि हम एक कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये कॉज इस समय तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं कहता हूँ ये सिर्फ मुंबई में ही नहीं, इस कॉज के लिए हमें गांव-गांव में जाना चाहिए. छोटे छोटे शहरों में जाकर जो लोग हैं उन्हें टीच करना चाहिए कि भाई इस तरह की हरकतें ना करें. बेटी बेटी होती है. मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं कहता हूँ कि हर बच्चा अपनी एक किस्मत लेकर आता है.
क्यों बेटी बेटे में फ़र्क, क्यों, किस लिए? आज मेरी जब से 2 बेटियां हुई हैं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं एक छोटे से 180 स्क्वायर फीट के कमरे में रहता था, उसके जन्म के बाद मैं 3 बेडरूम हॉल में चला गया और आज मैं आपके सामने उनकी वजह से खड़ा हूँ। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हमारी क्या औकात है? कोई औकात नहीं। आप हम बेटियों को सपोर्ट करने की बात होती है, दूसरी तरफ आशिफा जैसी घटना होती है हमारे हिंदुस्तान में, मानते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए आशिफा को? ज़बरदस्त जस्टिस मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इसके ना बहुत कठोर कानून होने चाहिए। हालांकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, मुझे पता है कि बहुत सारे कानून पास करवाने में बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोई कानून जो है वो लोकसभा से निकल कर राज्यसभा में अटक जाता है, बहुत सारी वोट बैंक की राजनीतियाँ चलती हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रह जाती हैं, है ना। तो इसमें अगर हम सब पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर वोट बैंक से अलग हटकर सोचकर चीज़ों को करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे कानून पास हो सकते हैं, कठोर कानून, जैसे अरब कंट्रीज़ में है। देखो ना, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती करने की, कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है क्या सज़ा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए मुझे लगता है। इसके अलावा आपके जो गेटअप है, आपके गेटअप के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप, तो ज़रा शूट बूट वाला गेटअप है, ज़रा आपकी जुबान से हम जानना चाहेंगे, आपकी जुबान से बताइए। देखिए क्या होता है, मैं अमूमन बड़ा देसी किस्म का आदमी हाँ, वो हूँ हम और आपने हमें भाभी जी घर पर हमें देखा भी होगा, उससे आप हमारी नेचर भी समझ गए होंगे कि हम बहुत छोटे से शहर को बिलोंग करने वाले बड़े छोटे से आदमी हैं। तो हमारी सोच भी जो है कहीं ना कहीं अभी भी वहीं की है। लेकिन हमारी जो पत्नी है, क्योंकि वो मुंबईया है, वो बम्बई की है, तो उनको हमेशा रहता है कि आप भी थोड़े अपग्रेड हो। तो उन्होंने आज मुझे कहा कि रोहित आपको जो है अच्छा सा सूट पहनना चाहिए, और ये टाई भी उन्होंने ही बांधी है। तो आज जो है मैं खास कर जो है, चाहिए थे लेकिन नहीं है वो यहीं पर है। उन्हें बुला सके, हाँ अगर आप उन्हें आपकी नज़रों के सामने आप उन्हें बुला सके तो ठीक है। संकेत माला के हाँ, वो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो ठीक गई। है, हम बाद में बात करेंगे। तो रैंप वॉक भी करना हो? नहीं, मैं रैंप वॉक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आई एम वन ऑफ द प्रेजेंटर, शायद मुझसे कोई अवार्ड दिलवाएं वो लोग। क्या बात है। आपके अंदाज में, जिस तरह से टीवी में लोग आपके अंदाज से देखते हैं, उस तरह से कुछ बेटियों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, आपके अंदाज में जो टीवी में हम देखते हैं। भाई हमारी बेटियों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जो पीछे छोड़कर आगे निकले भभूति जी की तरह, ऐसा नहीं करना, समझे ना, क्योंकि ऐसा होगा तभी हम कह पाएंगे सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। थैंक यू सो मच सर, गुड लक सर। फ्यू सेकंड्स वेट सर, वेट। आज बड़े कम पकड़े। सर ठीक है, पहले सर ये कर लेते हैं। मैंने तेरे को पहले आर्टिस्ट दिया ना, अब तू मुझे करने दे पहले बार। अमित जी, लेडीज फर्स्ट। तुम वुमेन अवार्ड में आके लड़की की लेडीज फर्स्ट, चलो आ जाओ साथ में। पहले मेरे को करने दे। अमित जी, अरुण, आज की शाम कुछ जोड़ की भी खा। हाँ हाथों से अवार्ड जी 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 जी, देख सकते हैं आप। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड अच्छा है, बहुत अच्छी इवनिंग लग रही है एकदम। काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर जिनको मैं जानता हूँ, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू बी हियर। बेटी भी इस कोर्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सभी support। जी क्या ठीक होगा आपका ऐसा मौका? यार, मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में ना सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए, है ना। वो सपोर्ट के जो ढकोसले के अंदर हम लोग अपने घर में बैठे हैं साहब, एसी में, हम सपोर्ट कर रहे हैं बस। अरे सिर्फ ये बोलना है हम सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कुछ होने नहीं वाला है। कुछ करो, कुछ करो। और हर इंसान को हिंदुस्तान के लिए करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ रहते हैं ना, जो आपकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के आसपास जो लोग हैं, आसपास जो लेडीज़ हैं, अगर आप सिर्फ
उन्हीं को सेफ रखना शुरू करेंगे तो हिंदुस्तान जाके सेफ होगा. सो आई वांट टू congratulate the Great Women Award. It's a very big award show which has been I think this is their 20th or 20th anniversary, and they're doing a great job in acknowledging and applauding the achievements of women, and I'm very excited to be here. क्योंकि आपने सपोर्ट की बात की कि आसिफा को जस्टिस मिलना चाहिए आपके अनुसार. बिल्कुल मिलना चाहिए. और जो इस समय हिंदुस्तान में जो हो रहा है इस वक्त रोज, ये बंद होना चाहिए. इसके बाद आपके गेटअप के बारे में जानना चाहिए. काफ़ी ये वॉच लग रही है, आप बताइए क्या हाँ, वॉच है. मैं घड़ी पहन रहा था और टूट गई. तो जब वो टूटी उसमें कुछ जो बच गया था, तो एक दर्जी है हमारा दोस्त, उन्होंने कहा एक काम करो, उसको फेंको मत, यहाँ लगा लो. तो ये घड़ी है और ये हार्ट बीट से चलती है. एक नस है, वो उस नस को अंदर जोड़ दिया इधर, तो टिक 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 कर रही है. Cheers. चलो रोल है सबका. जी, I have been styled by Astha, and I've actually. One second, I'm so sorry. Oh my God, I'm so sorry. I'm wearing a Gauri Nanika outfit and I feel lovely. आस्था एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टाइलिस्ट है. काफ़ी टाइम से मेरे साथ काम कर रही है और मैंने इन अमेजिंग डिज़ाइन का आउटफिट पहना. उर्मी जी, बी विथ बेटी जैसे कॉज को हम सभी यहाँ सपोर्ट करते हैं. बी विथ बेटी इनिशिएटिव को सपोर्ट करना. फर्स्टली मुझे अनु आंटी और चाची अंकल को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन जो औरतों के राइट्स के लिए लड़ती है, ये बहुत साल पहले शुरू की थी. हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके का माहौल है, एक लड़की होते हुए मुझे बहुत ही दुख लगता है, घबराहट होती है कि कल जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनका क्या होने वाला है और ह्यूमैनिटी किस तरफ जा रही है. एक दरंदगी, एक एनिमलिस्टिक बीस्टैलिटी हम देख रहे हैं एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग. एंड आई एम समबडी हु बिलीव्स इन द सिस्टम एंड आई एम श्योर दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड. उर्मी जी, तो क्या हम आप सभी सपोर्ट करें कि बेटी की बात करते हैं, क्या आप मानती हैं कि आशिफा को जस्टिस मिलना चाहिए? सर, इसमें मानने ना मानने की बात ही नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं हो सकता. उसे जस्टिस मिलना ही चाहिए और उस जैसी अनेकों लड़कियों को जिन्होंने ये नीच एक्ट का शिकार बनी है, और ताकि ये आगे औरतों के साथ ना हो, आई थिंक स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए. बट अगेन एज आई सेड, मुझे पूरा फेथ है, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे पूरा फेथ है कि हमारे लॉ और स्ट्रिक्टर लॉज बनेंगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी. और एक मुझे लगता है डर होना चाहिए लोगों में कि वो कोई ऐसा घिनौना एक्ट करके बच के नहीं जा सकते, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. भूमि, मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है. एक तरफ हम हमारी सरकार नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम वुमेन अचीव को सपोर्ट कर रहे हैं. क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए? मैं ऑलरेडी उसकी जवाब दे चुकी हूँ. एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट को, हमारे लॉज को, स्ट्रिक्टर लॉज होने चाहिए. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी को कोई इंसान ये नहीं समझ सकता कि वो एक इतना नीच घिनौना एक्ट करके बच के जा सकता है. सो यू नीड टू सेट गुड एग्जाम्पल्स. आज की शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है जी. कितना फील करती हैं आप? जी, अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. जब आपके काम को प्यार दिया जाता है तो खुशी होती है. एंड 2017 मेरे बहुत ही सक्सेसफुल ईयर था. मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हुई, मेरी दूसरी और तीसरी फिल्म एक्चुअली, और दोनों फिल्मों को इतना प्यार मिला एंड दोनों फिल्मों का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था. सो आई एम रियली हैप्पी. 18 में क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप? जी, 18 के धमाके, एक जो सोन चिड़िया जो मेरी अगली फिल्म है उसका एक लुक हम शेयर कर चुके हैं, लुक नहीं एक स्टिल शेयर कर चुके हैं, और बाकी धमाके स्लोली आहिस्ते आहिस्ते होते हैं. क्योंकि आपकी फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा, बात की जाती है, तो आप चाहेंगे कि ये फिल्में भी 100%. मैं फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ ये मेरे छोटे से करियर की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फिल्म है. बहुत मेहनत की हम सब ने इस फिल्म पे. एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, बढ़िया कास्ट है एंड अलग फिल्म है. एंड आई एम श्योर इसका भी उतना ही इम्पैक्ट होगा जितनी नहीं बाकी फिल्में. भूमि, लास्टली जाते जाते, क्योंकि हम वुमेन्स को
सम्मानित करें, एक मैसेज आपके फैंस के लिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी सारी लड़कियों को, क्योंकि आज हम औरतों को सम्मानित कर रहे हैं, कि बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को एम्पावर करिए, रुकिए मत कि कोई और आके आपको एम्पावर करे। वो सारे गुण या वो सारे टूल्स जो आपके लिए ज़रूरी है अपनी सुरक्षा करने के लिए, उन सबको सीखिए और हिम्मत मत हारिए। बहुत ही लंबी जंग है पर हम ज़रूर जीतेंगे। मैम 2 seconds भूमि जी। वेट आ रहे वो आ रहे नीचे आ जाओ, जितना दूर जाओगे अच्छा मिलेगा। हाँ। मैम सब जगह देखिए। आगे बुला हम लोग देखने वाले मैं मुझे थोड़ा राइट में भी इसमें छपने वाला है। आया हमारा माइक नहीं आने। सुनील ने फोन करी थे कि मारो इंजीनियर ने माइक रेडी रखे। सब लुक एट कैमरा सर, एक मिनट। आज की शाम बी विच बेटी जैसे कॉज को हम सभी सपोर्ट करने आए, आप बताइए क्या टेक होता है आपको जब इस मौके पर एक छत के नीचे हम और आप सभी प्रेजेंट होते हैं? आज की शाम बेटी के नाम इतना अच्छा कॉज लेके अनुरंजन जी और उनकी पूरी टीम आई है और एक ही मंच पे इतने सारे कलाकार इकट्ठा हुए हैं और ये एक जो पूरा फैशन शो है उसमें उसके अनुरूप म्यूज़िक प्रोड्यूस करने का जो ड्यूटी है वो मुझे दी है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड अनुरंजन जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सॉरी आप अनुरंजन जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इतना अच्छा इनिशिएटिव इतने सालों से कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। एकदम ये तो भाई मैं पैसे दूंगा तुम्हें इस बात पे। ओके, सबसे पहले सब है रेडी। दो ब्यूटीफुल गर्ल भी हैं यहाँ पे, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में और काफी लकी भी हैं आप। करेक्ट। क्या कहना चाहिए? ब्लश करे, शक्ल पे ग्लो तो देखो इनके। आज तक इतना नहीं चमका मैं बॉम्बे में, इतना आज चमक रहा हूँ। बहुत कम लाइट्स की जरूरत ही नहीं है, आज इतना चमक रहे हैं, अंदर से ग्लो बाहर निकल रहा है। inner beauty, right? क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा। लेफ्ट राइट होते तो चमक आ ही जाती। आई स्वेयर। जबरदस्त, लेफ्ट राइट पूरा चमक रहा है। इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहिए? स्कॉच के बारे में क्या कहना चाहिए? ऋषिना स्टार्ट। ओके, तो हम कॉज के बारे में ये कहना चाहेंगे कि अगेन आई स्टार्ट बी विद बेटी और अनुरंजन और शशि रंजन जी के साथ में हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत ही अच्छा कॉज है जिसके लिए हमें बहुत खुशी है रैंप वॉक करके। फॉर अ चैरिटी थिंग जिसके लिए हम सब यहाँ पे एसोसिएटेड हुए हैं आज। सो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू बी एसोसिएटेड विद बी विद बेटी एंड वॉकिंग द रैम्प फॉर बी विद बेटी बिकॉज इट्स एन एनजीओ थिंग, इट्स अ चैरिटी थिंग एंड वी ऑल आर ऑनर्ड एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड थैंक्स टू अनुरंजन एंड शशि रंजन फॉर हैविंग अस हियर। यस, मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ इट। आप क्या डर के बारे में बताइए? आई थिंक ये यार B4 बेटी है तो थोड़ा सा फ्रॉक टाइप है, मैं डरा था पहले से, लेकिन रणवीर सिंह का नाम लेके मैंने पहन ही लिया फिर, है ना, दोबारा जो मार देता हूँ। सो बट अच्छा सुनो, अगर आपको ऋषिना की आउटफिट दी जाती तो पहन लेते क्या? पहन लेता बहुत कंफर्टेबल अगर उसके साथ साथ कुछ और भी मिलता तो नहीं भाई, लड़के में कॉन्फिडेंस तो देखो, वो कुछ भी पहन लेता है। हाँ, जय रणवीर सिंह। टेलीविजन के रणवीर सिंह है यार, जय रणवीर सिंह। दोनों के साथ में बोल रहा है। ओके, ज्वेलरी काफी करीब होती है लड़कियों ये को। असली आप हीरे भी हैं, काफी असली हीरे हैं, हम तो डायमंड तो मैं ही रहूँगा। one by one। असली हीरो के गहने हैं ये और हमें बहुत खुशी है ये सब पहन के। और हुआ तो पीपल हुआ दिखने में बोला तुम्हें असली हीरा, अंदर अगर हमारे लिए डुप्लीकेट बना है तो तुम्हें थोड़ी पता चलेगा। अमेरिकन डायमंड्स डायमंड्स के पहले अमेरिकन लगा दो तो कैसे पता चलेगा? सरोस्की भी लगा दो। They told us these are like real diamond jewelry. चलो फिर घर चलते हैं। बट अच्छी एनजीओ बात का ये है, इवेंट हो अच्छी गया, बात ये चलो है कि घर हमें चलते हैं। कुछ नहीं दिया है,
लेकिन ये जो हीरे तराशे हुए आपको दिख रहे हैं लेफ्ट राइट पे मेरे, मैं इसी से खुश हूँ। Diamonds shine bright like a diamond. इनसे ऊपर कोई नहीं है। तो आज की बेटी, आज की बेचारा नारी, सोच रहे अब क्या सवाल पूछूं, ये लोग इतना बोल रहे हैं इतना बोल रहे हैं, अब क्या सवाल पूछूं। ये अभी तक कंटिन्यू चल देखो रहा भैया है। सवाल, हाँ, आपके सारे सवालों का जवाब ये है कि हमें बहुत खुशी है यहाँ पे बी विद बेटी के लिए वॉक करके, और हमारे कपड़े चोपड़ा। जो हैं वो अभी कर लो, रामलीला कर लो। हमारे कपड़े जो हैं वो अपर्णा चाहे लीला चाहे राम। तीनों ने अपर्णा पहना है, अपर्णा ने क्या पहना है? तुम एक काम करो ना, तुमने 3 बूम जो लेके आए हो, 3 अच्छा वो आ गई इधर भाई हम। अब 3 बूम ना स्प्लिट कर दो। ओके वी सिंग अ सॉन्ग। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के मैं तो बैठा हूँ ना। दुनिया का क्या काम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कभी खत्म, तीनों खत्म हो गया, इसका फिर भी नहीं हुआ। few seconds. Tina ji, few seconds short. Few seconds only. Here. Look this camera. यहाँ पर देखिए जरा। हाँ वहीं पे देख रहे हैं। डरेंगे नहीं हम। पीछे क्या कर रहा है? Shots ले रहे हैं। Thank you. होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नहीं इतना अच्छा नहीं। I know. भरोसा बिल्कुल नहीं। वही तो एक्टिंग है, पर अंदर से ऐसे हो रहा था। सेंटर में गई, मैंने जीतू जी को देखा। यार पूजा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत ही अच्छा शो हमने देखा, आपने किया। तो आपके पहले तो गेटअप के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे, बहुत थैंक यू सो मच। गेटअप ऑफ कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमारे शो में 3 डिज़ाइनर्स हैं अलग अलग, और मुझे जिस डिज़ाइनर के डिज़ाइंस पहनने का मौका मिला उनका नाम है अपर्णा एस। आई थिंक वो राजस्थान से है, और उनके डिज़ाइंस बहुत ही ऑनेस्ट है। उनके डिज़ाइंस में देयर समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट इट, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड, क्योंकि कोइंसिडेंटली मुझे जो कलर्स पसंद है, जिस तरीके के कपड़े पसंद है, मुझे एग्जैक्टली वही पहनने का मौका मिला। एंड साथ ही जो पूरी टीम है मेकअप और हेयर की, ओएसिस जो ग्रुप है उनकी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, एंड स्पेशली ऑफ कोर्स जूलरी घना सिंह जो है उन बी विद बेटी है जो इनिशिएटिव, जो कॉज है, इसे कैसे देखिए आप, क्या कहना चाहेंगे इस कॉज के बारे में? देखिए, ये जो कॉज है, ये जो एनजीओ है बेटी, और ये जो कॉज है बी विद बेटी या बेटी बचाओ, ये जो कॉज है, इसके लिए अनु जी पिछले 20 साल से इस इनिशिएटिव को आगे करती आई है, ऊपर उठाती आई है। जो इश्यूज़ हमारे देश में सालों से हो रहे हैं, आखिरकार किसी ने उसे सबके सामने लाने का जिम्मा उठाया। एंड हमेशा, खास करके आज की तारीख में, तो इस इशू को और इस मूवमेंट को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं आसिफा के साथ जो हुआ। मानते कि जस्टिस मिलना चाहिए? बिल्कुल। आई डोंट थिंक इंडिया का कोई भी, हमारे देश का कोई भी ऐसा इंसान होगा जो ये सोचेगा कि उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस मिलना ही चाहिए, एंड मुझे हमारे लॉ सिस्टम में, हमारे जुडिशल सिस्टम में पूरा भरोसा है। आई एम श्योर जस्टिस मिलेगा, एंड हम सब बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। Thank you so much. Thank you so much. Few seconds. Yes. काम भी करना चाहिए। मैम वेट, अरे एक मिनट डन। मैम वेट, एक सेकंड।
आसिफा जी, सबसे पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। तो आपके इस अटायर और ज्वेलरी के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है? बहुत एक्साइटेड हूँ जब लड़कियाँ ऐसी सुंदर ड्रेसेस पहनती हैं। ज्वेलरी सबको पसंद है, स्पेशली वुमेन को, तो मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। और एकता ने डिज़ाइन किया है मेरा कॉस्ट्यूम, तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत प्रिंसली टाइप फील कर रही हूँ मैं, बहुत रॉयल फील कर रही हूँ। एंड द ज्वेलरी ऑल्सो आई थिंक मैचेस द आउटफिट रियली रियली वेल। सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही अच्छा कॉज है। तो बेटी जो कॉज है, जी, इसे कैसे देखती हैं आप और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक बहुत ही अमेजिंग कॉज है और पिछले 12 साल से ग्रेट वुमेन ये कर रहा है और इतने सारे बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया है। आई थिंक बहुत ही नोबल कॉज है। और आजकल जो दौर है जो चल रहा है और आजकल जो हो रहा है स्पेशली अभी के टाइम पे, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ सिटीजन्स शुड बी। और हम इंडस्ट्री में रह के जितना कुछ कर सकते हैं करते हैं, कॉजेज़ को, ऐसे कॉजेज़ को सपोर्ट करते हैं ताकि और लोगों तक पहुँचे। ये ऐसा नहीं है कि फिल्म सिर्फ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कुछ कर सकता है। आई थिंक आम जो जनता है वो भी कुछ ना कुछ कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ गर्ल चाइल्ड या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। एंड आई थिंक अनु रंजन जो है बहुत ही अमेजिंग काम कर रही है एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट टुडे। आपके अनुसार आसिफा को जस्टिस मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। आई थिंक ये दिस गोज विदाउट सेइंग कि जो कल्प्रिट्स है उनको बहुत ही सिवियर पनिशमेंट देनी चाहिए और ऐसा एग्जाम्पल सेट कर लेना चाहिए कि आगे कोई भी इंसान इस बारे में सोचे तक नहीं। आई थिंक बहुत हो गया, बहुत लड़कियों के ऊपर, बहुत बच्चों के ऊपर ऐसी बकवास चीज़ें हो रही हैं और आई होप कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू। और एक क्या फील करती हैं आप जब इस तरह से वुमेन्स का अवार्ड आपके हाथों में होता है? वेल एक आर्टिस्ट के लिए अवार्ड्स रिकग्निशन जो है, एक्नॉलेजमेंट जो है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम काम अपने दर्शकों के लिए करते हैं और दर्शकों का सराहना जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत महत्व रखती है हमारे लिए। और आज ये अवार्ड हमारे काम के लिए नहीं, सिर्फ हमारी एसोसिएशन फॉर अ सोशल कॉज के लिए भी रखी गई है एंड फॉर विच आई फील responsible and I voluntarily take this social responsibility of maybe being a source of maybe an inspiration or aspiring to promote a bit of social education. And today I stand for the equality of gender, and so I stand for the third gender because as an artist I took up this challenge of portraying a character of an intersex in a show, and for me that is like a social responsibility, and I thank my man because he was the one to encourage me to take up this challenge, and had it not been his guidance I wouldn't have ever experienced and been a part of this journey and today received the award. So सर, बेटी जैसी कॉज इनिशिएटिव के मौके पर हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं, क्या टेक होता है आप जब यहाँ पर आप प्रेजेंट होते हैं, खास करके वुमेन्स अवार्ड भी होता है? देखिए, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी जो है उसकी बैकबोन इज़ विमेन एंड जहाँ पर औरतों की तरक्की हुई है और जहाँ पे वो नॉट इक्वल बट दे आर अहेड ऑफ मैन, those countries are very prosperous and I'm very proud कि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मतलब मेरे लाइफ स्पैन में मैंने देख लिया है कि जो औरतें हैं उनकी एम्पावरमेंट एक्चुअली में हुई है ऑन ग्राउंड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्टैंड विद अ वुमन जो काम करती है, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करती है, शी इज़ इंडिपेंडेंट, खुद कमाती हैं एंड शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड शी नोज़, शी इज़ एजुकेटेड and she's aware and she can make a great speech जो अभी इन्होंने दी।
So I mean, all the reason to be proud of women. आपके अनुसार कि हम सभी बेटियों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, आशिफा को जस्टिस मिल क्या नहीं है? मैंने अपने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा कि अगर मैं कुछ कर नहीं सकती तो उस मुद्दे के बारे में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती। ज़रूर मिलना चाहिए जस्टिस। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ पे जो लॉ है वो अपना एक इट टेक्स इट ओन ड्यू कोर्स एंड इट विल एंड उसके साथ सबकी दुआएं हैं। वो एक बेचारी छोटी बच्ची थी, व्हाटएवर हैपेंड वाज रॉन्ग एंड वी ऑल आर प्रेइंग फॉर हर, शी विल गेट जस्टिस। आपके अटायर के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सके, जो कि ब्यूटीफुल लग रहा है, आई थिंक साड़ी वाओ, आपको सोचना पड़ेगा सारी। यहाँ से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। Yes, it's a sari, and of course that is my infinite love for the saris, and आज इसे थोड़ा सा contemporary look देना था, so I tied up my hair in this long braid, and because summers define करना है, so we chose the pastel color combinations. Yeah, you are getting married very soon. Yes, very excited. काम कर रहे हैं दबाकर। अभी we are going somewhere to for the planning. Yeah. So enjoying the process. मज़ा आ रहा है। ये भी बात रिवील हुई अपने नेटिव प्लेस पर जी शादी कर रहे हैं। जी अपने नेटिव प्लेस पे शादी कर रहे हैं और जो ट्रेडिशंस हैं हमारी उसको उसके हिसाब से भी हम शादी कर रहे हैं। देयर आर पंजाबी एंड हिमाचली कल्चर्स का बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप क्या कहोगे, कितनी एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बोथ ऑफ अस वी आर ट्रैवलर्स एट हार्ट एंड वी बिलीव इन द जर्नी एंड दिस जर्नी ऑफ celebrating our biggest day. We both are enjoying it. He is taking all the responsibility, doing the groundwork, and of course I'm doing it digitally on phone, sitting on WhatsApp and coordinating things. So he's doing all the efforts. Thank you so much. Wonderful. Thank you. तुम्हारा कदम हुआ क्या? या मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊँ। थैंक यू। रेडी। आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा वॉक करके। जो लुक है मेरे कलर प्रेफरेंस से इंस्पायर्ड है। आई लव क्रीम, आई लव मरून एंड आई लव गोल्ड, सो विच गोज एप्ट विथ माई स्किन, विथ माई कॉम्प्लेक्शन एंड विथ माई फिजिक। बेटी जैसी कॉज को, इनिशिएटिव को हम सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या टेक होता है आपका इस मौके पे, इस कॉज पर हम सभी यहाँ पर? डेफिनेटली बी विद बेटी के साथ सपोर्ट करके उसके साथ रह के बहुत ही खुशी होती है। मैं खुद भी एक सोशल कॉज के लिए वर्क करती हूँ। मेरा खुद का एक ऑर्फनेज होम है जिसके अंदर 45 लड़कियों की मैं देखभाल कर रही हूँ, फ्रॉम द फूड टू हॉस्पिटैलिटी टू बुक्स टू एवरीथिंग। तो बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि सोसाइटी में बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ की ये शिक्षा आगे जारी रहे और इसको हम बढ़ाते रहें और जितनी लड़कियाँ हो सके वो आगे आ सके, अपना हुनर दिखा सके और दुनिया में शाइन करे। ये मैं मैसेज देना चाहूँगी कि it's nothing like that men are superior than women. Everybody is equal and everybody should be treated equally, whether at home, whether at college and whether outside in the world. ज्वेलरी जो होती है हर लेडी के काफ़ी करीब होती है और आपके भी काफ़ी करीब है, तो आप बताइए कितना पसंद है? Diamonds are girls' bestest friend. Don't you know that? And I really love diamonds in my real life too. In fact, आप देखेंगे तो मेरी मदर ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया and it is diamond and I really love it. मतलब मेरा बस नहीं चले, सूट्स होती है नहीं तो मैं मेरे सारी उंगलियों में मेरे एक वो रहता है, इन सारी उंगलियों में रहता है और नेक में रहता है, बट शूट पे अवॉइड करती हूँ क्योंकि घूम जाता है। या थैंक यू सो मच गरिमा जी, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। फ्यू सेकंड्स पीछे आ जाओ थोड़ा।
चलो फोटो है रोल है सबको। शबाना जी कॉन्ग्रेचुलेशन और एक आपने क्या फील करती हैं और क्या टेक होता है आज के इस मौके पर, स्पेशली बी विथ बेटी जैसी कॉज इनिशिएटिव के मौके पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कई सदियों में एक साथ जीता है। हम लोग जो हैं 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में एक साथ रहते हैं और सबसे ज़्यादा इसका नज़रिया हमें नज़र आता है आजकल हमारी औरतों के साथ। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारी औरतें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची हैं, बहुत बड़ी लीडर्स हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़मर्रा हम ऐसी खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं रह गए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम एक आवाज़ में उठकर पूरी तरह से मेहनत करें कि जिस तरह की कांड हो रहे हैं वो बंद हो जाए, क्योंकि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए बेटी को ज़िंदा रहना तो ज़रूरी है। शुक्रिया। शबाना जी एक मिनट वो चली जाती है, एक ही सवाल का जवाब फाइट कर ले ओके। बेटी जैसी कॉज के मौके पर हम सभी यहाँ पे आप कितनी एक्साइटेड हैं इस आज की शाम इस इनिशिएटिव को लेकर? I'm very excited because in day-to-day routine I'm like shooting, तो मुझे इन सारी चीज़ों में हिस्सा लेने का मौका कम मिलता है। बट ऐसी कॉज का हिस्सा होना इज़ ऑल्सो आई थिंक एक नसीब की बात होती है ना। आई फील वेरी लकी। ब्यूटीफुल अटायर है आपका, तो हम आपके इस अटायर के बारे में जानना चाहेंगे कि जो कि बहुत ही वीडियो कुछ अगर आप अपने अटायर के बारे में। Thank you so much. This is, I think, the designer name is Ekta and Parth, and very nicely fusion they have created. Pure Rajasthani style की चोली देके और simple वो राजस्थानी जरदोजी वर्क की बॉर्डर डाल के और साइड में उसका जो उन्होंने डाला है, it's very pretty. I loved it. So रैंप वॉक भी करने वाले हैं? मैं वॉक करूँगी, रैम मेरे साथ चलेगा। कितना एक्साइटेड होती है जब आप वॉक करती है रैंप वॉक आपके साथ चलता है? नर्वस बहुत हो जाती हूँ, बट मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इसलिए शायद, पर एक्साइटमेंट हमेशा रहती है क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड फॉर मी। एक आखिरी सवाल देखिए, हम बेटियों की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, आप मानते हैं कि आशिफा को जस्टिस मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स मिलना चाहिए और आई थिंक सो मिलेगा भी उसे, क्योंकि आज ही लॉ एक पास हुआ है जहाँ पर अगर ऐसा कुछ हादसा हो रहा हो तो आप इमीडिएटली अपने बचाव में किसी की जान भी ले ले तो दैट विल नॉट बी अ क्राइम, दैट विल कॉल सेल्फ डिफेंस एंड नॉट एज द विक्टिम जिन पर वो हो रहा है। अगर कोई और भी देख रहा हो तो बचाने जाए और वो कर दे तो आई थिंक वो भी उन्हें भी माफ़ किया जाएगा। तो आई थिंक यस डेफिनेटली ओवरनाइट डेफिनेटली कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे इस पर बहुत अच्छे से चर्चा और विचार भी किया जा रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट एटलीस्ट I'm so happy and I'm so glad that I'm walking with Veer Bedi. No, more than that, I'm glad that I met my friend after so long. आपकी फ्रेंड कैसी लग रही है आपकी टीना जी? आपकी फ्रेंड कैसी लग रही है? मैं तो पर्सनली जैसे ही मिला मैंने बोला ओ माय गॉड स्टनर, लुक एट यू, शी ऑलवेज लुक स्टनिंग, शी ऑलवेज लुक गॉर्जियस, शी इज प्रिटी एंड ऑफ कोर्स वो कुछ भी पहन के कुछ भी हेयर डू करती है, शी कैन जस्ट पुल इट ऑफ विद अ कॉन्फिडेंस, दैट्स द बेस्ट थिंग। ऑनेस्टली आई लुक अप टू रश्मि और रश्मि ने एक चीज़ बोली थी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो उसने मुझे आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर, रश्मि ने मुझे ये बोला था तो किसी भी इवेंट में जा, किसी भी पार्टीज़ में ना जा, यू शुड बी ओवर ड्रेस एंड नॉट अंडर ड्रेस। ये मैं हमेशा याद रखती हूँ और मैं हमेशा तैयार होकर बन के जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ। ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड। रश्मि जी, जब इस तरह से लाइव कमेंट मिलता है आपको ब्यूटीफुल लग रही है, गॉर्जियस लग रही है, ये वो क्या
टेक होता है आपका क्या? Oh, I feel very good, but off lately I'll be very honest. मेरी लाइफ से थोड़े से रंग जा चुके हैं, but when I see her and lot of people doesn't know we live in the same building, Of course. same wing, only 4 मालों का डिफरेंस है, but हम लोगों का मिलना जुलना बहुत कम होता है because her life is also But very I busy. think ये बाइट ना वायरल होनी चाहिए. लोगों को आज भी जो लगती है ना गलत फहमी है कि टीना और रश्मि की बनती नहीं है. प्लीज ये देखो. ये देखो. She's a sweet Arya. She's a darling. Your segment is done. My segment is done. Yours is not done. She's going to sit with you. Yeah, she's going I'm gonna wait for her. I'm gonna change and surely wait for her. See. Thank you जी. Thank you, baby. Thank you Tina. You can't. I'm choosing. हाँ कम यहाँ पे आ, 1 मिनट वेल आई थिंक सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अनु मैम को, शशि सर को, कि वो एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है जिसको वो हर साल करते हैं एंड इस साल मैं भी उसका हिस्सा बन पाई एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. हमारे देश में बहुत ज़रूरत है कि हम लड़कियों को बढ़ावा दें क्योंकि लड़कियां भी देश के लिए उतने ही गौरव ला सकती जितना कि लड़के एंड आई थिंक कोई भी क्षेत्र हो गर्ल्स आर डूइंग सो मच बेटर. सो आई फील वेरी स्ट्रांगली मैं भी आज जो कुछ हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ हाउ मच शी पुश्ड मी, हाउ मच शी सपोर्टेड मी. सो या आई एम ऑल फॉर द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है कुछ करने का, उनको लोग करने बढ़ने नहीं देना चाहते? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, अपने ड्रीम्स को मत छोड़िए क्योंकि ड्रीम्स पूरी होती हैं, ज़रूर होती हैं. और मैं जो आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, हमारे आसपास के मेन और विमेन हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी कि एक अच्छे समाज की जो नींव होती है वो एक औरत रखती है. सो आई थिंक स्ट्रॉन्ग विमेन मेक फॉर अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी. वी शुड नेवर फॉरगेट दैट. ओके, वो एक तरफ कहा जाता है कि यार बेटी बचाओ और एक तरफ कहा जाता है बेटी पढ़ाओ, और इस तरीके से जिस तरीके से आप देख रही है, आपने भी इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर करी थी. आई टॉक अबाउट आसिफा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितनी शर्मनाक बात है ये? Well, it's sad, it's tragic, it's heartbreaking and the people behind it should be punished. And I think एक 8 साल की बच्ची को एज ए सोसाइटी अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो बहुत शर्म की बात है. एंड बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं. आई फील वेरी अपसेट अबाउट दैट ऑल्सो. आई थिंक इसको छोटी बच्चियों को लेके और ख़ासकर उनके साथ जो रेप हुआ उसको लेके वी शुड नॉट मेक इट पॉलिटिकल. आई थिंक जस्टिस
is what we should be fighting for and arguing about, not about making the issue political. That's what I think. Thank you. ये मेरा बहुत पुराना यार है, मेरा लगते जिगर है, और ये ऐसे अच्छे काम हमेशा करते रहता है, और मैं जब भी मुझे बुलाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे बुलाता है। ये जहाँ बेटियों को इतना सम्मान हो रहा है, वहाँ आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। इतनी सारी बेटियाँ यहाँ, काबिल बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग कमाल किया है। देखिए, इस देश में एक वक्त ऐसा था कि जो बेटियों को आने से मना करते थे, लेकिन आज बेटियों ने इतना कमाल कर दिखाया है कि कोई उन्हें रोक के तो दिखाए। एंड ही स्पॉन्सरिंग सच गुड कॉजेज, सो वी शुड ऑल बी विद हिम, बी विद पीपल लाइक हिम, एंड ऑलवेज लेट द बेटीज ग्रो, वी शुड विश देम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीतू जी जैसे लोग जो हैं इस कॉज को और इस प्रयत्न को अच्छा समझ रहे हैं और लोग इसे अप्रिशिएट करें। थैंक यू। सर नीचे देखिए।